Okay, so in this part what we saw was that each sample regression line will give a SRF, and each sample will give you one SRF. For example, these are different samples which have given different sample regression lines. Now all of them will definitely pass through x bar comma y bar coordinate, because that is where the centrality of the entire data set lies. यहाँ पर आइडली पूरा पूरा डेटा सेंटर कर रहा है, ठीक है, तो हर लाइन यहाँ से जरूर पास करेगी. So you have one point through which all regression lines pass, and guys, जितना आप इसके पास आओगे, जितना आप x बार के पास आओगे, जितना आप y बार के पास आओगे, later on I'll tell you that आपका predictive power उतना ज़्यादा होगा. Can someone get this point कि predictive power उतना ज़्यादा होगा? Can you infer this point कि जितना आप x बार के पास आओगे उतना आपका predictive power ज़्यादा होगा? Anyone? दीक्षा? हाँ, being able to predict correctly, yes, of course that's what it means, but बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब हम बाद में बात करेंगे रिग्रेशन की लाइन के बारे में, सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, सपोज मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है और वो ये पॉइंट मैं चेक कर रहा हूँ, ये इतना दूर है इससे, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पॉइंट डाला है, जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, वो जो हो सकता है उसका एरर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्चुअल वाई जो है, क्योंकि जो एक्चुअल आपकी जो रिग्रेशन फंक्शन है और जो आपने सैंपल से निकाला उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है, और आपका एक्चुअल वाई और एक्चुअल रिग्रेशन सैंपल रिग्रेशन लाइन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. विल कम अक्रॉस दिस पॉइंट लेटर ऑन, बट जस्ट रिमेंबर कि centrality of the entire data is always around the means, and it is because of this that you actually all your SRFs, all your PRF will definitely pass through this. And in fact later on I'll also tell you that there is something called standardizing your data. Standardizing your data basically means कि आपने इसी को origin बना दिया है, इस पॉइंट को ही आप origin बना दोगे, ठीक है. दिस पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम देयर टू हियर जब आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा करोगे. कैन समवन गेस अभी से, I'm going way ahead in time, but can someone guess कि स्टैंडर्डाइजेशन से एक इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला होगा मॉडल पे? कैन समवन गेस स्टैंडर्डाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आई गिव यू हिंट, ठीक है, I'll tell you the answer, but ponder upon it. If you standardize your entire model, there will be no intercept. Your regression line will pass through the origin, ठीक है. Just ponder upon it. ये क्या होगा? So it will be a no intercept model. चलो, so then in the previous class we understood that हमारा yi है और yi को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. You can represent it in each particular yi can be represented in two forms, either in the form of PRF or in the form of SRF. दोनों के किसी के भी stochastic form में आप represent कर सकते हैं. And what is this line? These are basically your sample regression functions, and the population regression functions are the best fit lines. Now the question is, how do you get to this best fit line? How to estimate this? That's our question. How to estimate this? ये हमारा question है कि हम कैसे निकालेंगे इसको. Now the method that we are going to see is basically called the OLS method, ठीक है. किसी ने guys निकाला OLS के थ्रू? Did someone solve guys? हाँ कि ना? किसी ने नहीं निकाला. now the issue is कि हम best fit line कैसे निकालें? What is the best fit line? So this best fit line is basically जहाँ आप errors को minimize कर पाओगे. Errors minimize, and what we found out was to minimize the error you basically have to minimize the square of errors. तो हमने देखा कि error क्या होता है. EI is nothing but yi minus y hat, ठीक है, ये हमारा error है, and इसका स्क्वायर को हमें मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स इसको मिनिमाइज करना है,
एंड अक्रॉस ऑल ई आईज करना है, पूरी रिग्रेशन लाइन में सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जो आपको मिनिमाइज करना है. सो यू वांट टू मिनिमाइज अक्रॉस द इंटायर रिग्रेशन लाइन. ये आपकी लाइन है, आप यहाँ पर हर पॉइंट को मिनिमाइज करना चाह रहे हो. ये लाइन कैसे आई होगी? ये लाइन ऐसे आई होगी कि आपने हर पॉइंट को मिनिमाइज किया होगा. ये सारे पॉइंट्स को इस लाइन से मिनिमाइज करोगे. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को मिनिमाइज करोगे. सो दिस इज द बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, तो अब आपको स्क्वायर ऑफ ऑल एरर्स को आपको मिनिमाइज करना है. एंड व्हेन यू सम इट अप ओवर ऑल द पॉइंट्स, ओवर ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट यू हैव, you need to add a summation here. This will be of the form, ये कैसा बन जाएगा? This will be summation yi minus b1 minus b2 xi. now guys, squared function है तो और हमें मिनिमाइज करना है, तो ये कनकेव शेप बेसिकली होगा. तो लेट मी शो यू कि एक्चुअली में हम क्या कर क्या रहे हैं. नाउ दिस डायग्राम दैट आई एम ड्राइंग इज नोवेयर there in any of the books, so please note it down carefully. So what we are trying to do is, just think, I'm drawing a 3-dimensional diagram in which I'm going to tell you what are we doing. B1, this is your B2, this is your error. ठीक है, and this is your error function. ये आपका फंक्शन है. ठीक है, 3-dimensional डायग्राम है. आप बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हो. ये पॉइंट होगा जो आपको मिनिमम एरर देगा इस पूरे फंक्शन के अंदर. वो क्यूबिक क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन था. इस तरीके का शेप आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का. तो आप इस पॉइंट पे आना चाह रहे हो एरर के. ठीक है, ये सब बेसिकली ऑल दीज आर काइंड ऑफ आइसोस्प्लाइंस. ठीक है, 3D डायमेंशन में बेसिकली ये बता रहा है कि ईच ऑफ दीज कर्व्स इज बेसिकली गिविंग यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ B1 एंड B2 विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ एरर. ये समझ में आया गाइस? इट्स समथिंग लाइक IC भी तो यही कहता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 विच गिव्स यू अ सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. गाइस ये चीज समझ में आई? फर्स्ट यू नीड टू नो दिस थिंग एंड देन आई कैन गो फॉरवर्ड. ये बेसिकली फंक्शन क्या कह रहा है? इफ यू सी दिस, हमें वैल्यू निकालनी है B1 और B2 की. ठीक है, सो दैट एरर मिनिमाइज हो पाए. तो देयर विल बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ B1 B2 जो एरर देती होंगी. बहुत सारी लाइंस ट्राई करोगे ना, यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आपको ट्राई करनी पड़ेगी, फिर आपको बेस्ट फिट मिलेगी. इसी का 3-dimensional फिगर क्या बनेगी? आप B1 एंड B2, ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है या z एक्सिस है. B1 एंड B2 की आप डिफरेंट वैल्यूज लोगे तो आपके पास ऐसी सर्कुलर एक बेसिकली कर्व्स, आइसोस्प्लाइंस बोलते हैं उनको, वो मिलेगा. ठीक है, वो बेसिकली क्या बता रहा होगा? वो आपको बता रहा होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ B1 एंड B2. फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है बेसिकली, ये बेसिकली बता रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ B1 एंड B2 विच गिव्स यू सेम लेवल ऑफ एरर विच इज दिस. समझ में आया गाइस? फर्स्ट वी नीड टू एस्टैब्लिश कि ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं. हेलो. सो what you need to do is, suppose आप इस पॉइंट पे हो, आपको धीरे धीरे मूव करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे इस तरीके से आप मूव करके इस पॉइंट पे आना चाहते हैं. ठीक है, इसको हम एडवांस लेवल पे इसको हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं. ठीक है, बट लेट्स फॉरगेट व्हाट ग्रेडियंट डिसेंट इज. बट बेसिकली आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर एरर मिनिमाइज हो गया और इस पॉइंट पे एरर जो है वो मिनिमम पे है. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये हो गया आपका B1 स्टार और ये हो जाएगा आपका B2 स्टार. सो दिस इज बेसिकली योर एरर मिनिमाइजेशन. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट इन प्योर मैथमेटिकल टर्म्स. ये उसका डायग्राम होता है, बट दिस इज नॉट द वे इट इज एक्सप्लेन्ड. हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होता है हम वो ले लेते हैं and then we try to solve it. So let's solve it through the first order condition and the second order condition. So mathematically what we do is, let's see mathematically what we will do is some ai square b1 is equal to 0, ai square second order conditions. चलो second order conditions के बारे में बात करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस रहेगा. ठीक है,
you put it to 0, and you will get values of b1 and b2. Now if you see my notes, you will find these values. Let's go through them as well. ठीक है. Now this is where, अच्छा ये यहाँ पर जो UI लिखा हुआ है गाइस, ये कुछ नहीं है, ये EI ही है. ठीक है, मैंने कहा था ना मेरे नोट्स में UI hat लिखा हुआ होगा. So UI is basically a function of b1 and b2. अच्छा, let's see it here as well. यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर EI जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है? b1 और b2 का ही तो फंक्शन है. b1 चेंज होगा, b2 चेंज होगा, तो EI चेंज हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ b1 b2 विल गिव यू EI. सो EI इज अ फंक्शन ऑफ b1 एंड b2. ना लेट्स, और यही सेम चीज़ हमने करी जो हमने वहाँ करा. नाउ what we have done is, मैंने वो बोला ना, choosing different values of b1 b2 will give different EIs and hence different values to RSS, the residual sum square. So what we need to do is minimize this. So if you see this, you will find that b1 आप इसको minimize करो, first order differential करो. तो let's guys, can you write down simultaneously? I hope you are writing simultaneously, guys. ये maths पढ़ना मत please. ठीक है. Now because if you are reading this, trust me, you're going to be in deep trouble later on. So just these notes are ease of basically teaching, so that and revision, so that I don't have to write every equation in the class. So if you see this, what we have done is just पहला हमने differentiate किया with respect to b1, and when you differentiate with respect to b1 तो क्या आएगा आपका फर्स्ट चेन रूल लगा. ठीक है, and chain rule लग के आपका you put this equal to 0, and this is where what you get. Are you able to get this first equation, guys? Chain rule लगा के, all of you guys, I want all of you to write. Good. Then हम b2 के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे. b2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा आपका. पहले तो यही सेम चीज़ आ गई, बट देन यू वुड हैव द प्रोडक्ट रूल, एंड प्रोडक्ट रूल के साथ में xi मल्टीप्लाई हो गया, एंड जस्ट मल्टीप्लाई, जस्ट ओपन दिस टर्म, तो आपके पास क्या आएगा? समेशन yi xi, ठीक है, इंटू समेशन yi xi इंटू माइनस या इंटू माइनस बीटा 1 हैट या b1 xi. ठीक है, एंड और रिमेंबर गाइज, आपके b1 b2 जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ये समेशन से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये समेशन से बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास ये बच जाएगा, एंड दूसरा आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर. सो द टू नॉर्मल इक्वेशंस दैट यू हैव फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, is basically summation yi is equal to nb1 plus b2 into summation xi, and summation yi xi is equal to b1 summation xi plus b2 summation xi square. These are called as normal equations. Normal equation 1, normal equation 2. We will use them extensively, and you simultaneously solve these two normal equations. ठीक है, just replace the value. Just try doing it, guys. Replace करने की कोशिश करो, इसमें xi को replace करने की कोशिश करो. See what you get. Try and see if you get this b1 and b2 की value. Can you check, guys, please? I don't want you to just write this. I want you to solve for this. Check if you can get these values. You will get one value as this and one value as this. कर रहे हो guys simultaneously? Just check. Then I will show you the answer as well. Now, one of the ways to solve this, guys, is basically the matrices method. ठीक है. Now what you do is just put on both these equation into matrices. Matrices method कैसे solve करोगे? Now you have, यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल इक्वेशन, हाँ, ये आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन है, एंड ये आपकी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन है. ठीक है, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. आपकी b1 एंड b2 की वैल्यूज में क्या आ रहा है? आपके कोएफिशिएंट्स n एंड समेशन xi. ठीक है, n एंड समेशन xi, और आपका जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या आ रहा है?
समेशन एक्स आई एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये आपका बेसिकली फर्स्ट कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स हो गया, कोएफिशिएंट्स, एंड ये आपके बेसिकली हो गए दी वेक्टर ऑफ योर पैरामीटर्स b1 एंड b2, और ये आपकी हो गई y की वैल्यूज समेशन y एंड समेशन xi। गाइस ये याद आया, इसको हम मेट्रिसेस फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं, याद आया, ax इज इक्वल टू b फॉर्म जो होता था मैथ्स। अब आपको b1 की वैल्यू निकालनी है और b2 की वैल्यू निकालनी है, तो b1 इज नथिंग बट determinant of d1 upon a and determinant b2 is determinant of d2 upon a। तो उससे अगर आप सॉल्व करोगे you will get these two values, ये आपके पास आ जाएगी पहली वैल्यू b2 की। सो b2 की all you need to do is basically आप इसके अंदर रिप्लेस कर दो समेशन xi yi b2 की जगह, तो n आ रहा होगा, हाँ, तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो इसको, ठीक है, सॉरी, इसको अब यहाँ रिप्लेस कर दो एंड देन सॉल्व फॉर d2, सो यू विल गेट n इंटू समेशन xi yi माइनस xi समेशन xi yi, ये देखो ऊपर आ रहा होगा, ये आ गया। एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में इसका डिटर्मिनेंट होगा n xi स्क्वायर एंड xi स्क्वायर, xi का होल स्क्वायर। गाइज आया समझ में कैसे निकाला ये, और यू वांट मी टू रिपीट इट गाइज, हाँ कि ना? पक्का? हमारी सिक्किम की दोस्त हैं नवांग, आई थिंक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, वेयर आर यू? हाँ ये नवांग, हाय, आर यू देयर? अंशिका बोलते के साथ ही अंशिका है। और लोग देखते हैं विदेही। गाइज एंड में मैं अटेंडेंस लास्ट मोमेंट पे लेता हूँ, तो अगर इफ यू नॉट अटेंडिंग तो आपको अटेंडेंस भी नहीं मिल रही है। चलो स्क्रॉल प्लीज, होल्ड ऑन गाइज, लेट मी तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेट मी राइट इट डाउन। तो बोल दो ना कि लिख दो, बोल क्यों नहीं रहे हो? सोते रहोगे तो इकोनोमेट्रिक्स में काम नहीं चलेगा। चलो, now the two normal equations. Your first normal equation is summation b1 b2. Can someone just dictate the first and second normal equation? Guys, can someone dictate the first and second normal equation? Easy हो जाएगा। So summation yi equals to n b1 plus b2 summation xi। ठीक है, second equation लगाओ। Summation xi yi equals to b1 summation xi plus b2 summation xi whole square, sorry summation xi square। गाइस सारे एक बार चेक कर लो कि यही है या नहीं, एंड फॉर यू गाइस राइट इट डाउन एट द एंड ऑफ द कॉपीज, क्योंकि कई बार आपको ये दोनों इक्वेशंस की कई बार ज़रूरत पड़ जाएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो दीज आर पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट डाउन सेपरेटली, ठीक है। लास्ट के 3-4 अपने रजिस्टर के पेजेस इन इक्वेशंस के लिए, इन मेजर इक्वेशंस के लिए रख लो, बिकॉज वी विल अगेन एंड अगेन यूज दीज, ठीक है। सो I'll just share a couple of pages with you जहाँ पर मैंने पूरा इकोनोमेट्रिक्स के सारे, फॉर एग्जांपल इवन व्हेन वी गाइस गो फॉर इंटरव्यू, जैसे अभी शायद से परमानेंट इंटरव्यूज प्रॉब्ली शुरू होंगे, सो देयर आर लॉट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, तो पूरा का पूरा इकोनोमेट्रिक्स आई हैव समराइज्ड इन 4 साइड्स, ठीक है। तो इट बिकम्स ईजी, अच्छा ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये मेजर टेस्ट हैं, तो इस तरीके से यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ योर स्टडिंग। तो ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो यू नीड टू राइट डाउन सेपरेटली। नाउ जस्ट स्टार्ट कैसे किया इसको प्रूव करना हमने, तो ये स्क्वायर को मतलब स्ट्रेट अवे उसी को डिफरेंशिएट कर दिया, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, समेशन। हाँ हमने कुछ नहीं किया, समेशन बस इसको डिफरेंशिएट किया, और इसमें ये क्या है -b1, तो पहले b1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर b2 के रिस्पेक्ट में किया। चलो, एंड अब हमारे पास 2 नॉर्मल इक्वेशंस आ गई। अब हमें वी वांट टू साइमल्टेनियसली सॉल्व देम, सो अ वे ऑफ सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली इज थ्रू द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है? ax इज इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। नाउ
आप कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है, कोएफिशिएंट्स का आपने बनाया, कोएफिशिएंट्स क्या है आपके, आपके कोएफिशिएंट्स है n समेशन xi, और नीचे क्या है आपके कोएफिशिएंट समेशन xi और समेशन xi स्क्वायर, ये आपके कोएफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगे वेक्टर ऑफ योर पैरामीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू बेसिकली और y टर्म्स ये। अब आपको मैं कहूँ कि b1 और b2 की वैल्यू निकालो तो क्या होगी, b1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपका a है। और जब आप d1 कैसे करोगे, d1 के लिए आप इसको यहाँ रिप्लेस कर दोगे, इसकी जगह पे आप पहले ये ले आओगे, वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ d1 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ d2 के लिए क्या करोगे, इसको इसकी जगह पे ले आओगे तो आपका d2 हो जाएगा। तो हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक्चुअली b2 होता है। तो आप क्या करोगे, आपका न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट क्या हो गया, न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट हो गया n समेशन xi समेशन yi समेशन xi yi अपॉन समेशन ऑफ ये जो आपका नॉर्मल डिटर्मिनेंट है, जो नॉर्मल मैट्रिक्स है, n समेशन xi समेशन xi समेशन xi स्क्वायर। क्लियर, अब समझ में आया सबको। सिमिलरली b1 का भी निकाल सकते हो, b1 का क्या हो जाएगा, b1 का हो जाएगा, लेट मी राइट इट डाउन, मैट्रिक्स समेशन yi समेशन xi yi समेशन xi स्क्वायर अपॉन दी सेम थिंग ए मैट्रिक्स। तो ये आपको वैल्यूज देगा। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो b2 की, हमारे लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लोप, ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्लोप। तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n इंटू समेशन xi yi माइनस xi yi समेशन xi समेशन yi अपॉन n xi स्क्वायर माइनस xi होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब समझ में आया गाइस सबको, ठीक है। जब हम मल्टीपल वेरिएबल मॉडल में जाएंगे तो मैं ये नहीं करूँगा, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। नोट्स में भी मैंने आधा जानबूझ के नोट्स छोड़ा हुआ है, ठीक है। सो मल्टीपल वेरिएबल जब ये b3 b4 में चले जाएंगे, I will not be doing this, you will have to do it by yourself. And in fact, when you go to advanced tricks, all of the entire econometrics is in matrices, ठीक है। तो तब आप आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज के बारे में बात करोगे, ठीक है। सो दैट इज द एसेंस, ठीक है। सो लेट्स सी दिस थ्रू नाउ। तो अब गाइस ये सब तो करा होगा ना मैथ्स 1 में, ये चीजें, देन आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, ऑल ऑफ दिस मस्ट हैव बीन डन। हेलो, किसी को याद भी है कि नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलो। सो बाद में आएगा वो एडवांस ट्रिक्स में, यू विल प्रॉब्ली नीड टू कवर इट अप। लेट्स सी द नॉर्मल इक्वेशंस। हम कहाँ पर पहुंचे, हम यहाँ पर ये पहुंच गए, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, इसी को हमने डिफरेंट फॉर्म में अप्लाई करना शुरू किया है, ठीक है। एंड वी हैव रिटन दिस एंटायर इक्वेशन इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम n से डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपके पास ये xi, ये समेशन xi हो जाएगा और ये x बार हो जाएगा, ठीक है। तो you just apply this and you will get this kind of an equation, ठीक है। this is nothing but, this can be written as, and I need you to prove this can be written as summation xi minus x bar into yi minus y bar upon summation xi minus x bar whole square. Can you solve this guys? Yes sir. ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। टेक 2 minutes, ओपन दिस अप, सी इफ यू गेटिंग दिस। टेक 2 minutes, इसको ओपन अप करके कैसे आएगा, ये दोनों सम हो जाएंगे, फिर आप इन दोनों का सम करोगे, फिर इन दोनों का करोगे, दो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी कुछ ना कुछ, फिर एंड में आपके पास ये बच जाएगा। चेक करो इफ़ यू गेटिंग दिस, जस्ट ट्राई इट आउट। सिमिलरली इसके साथ भी आप यही करोगे, यू विल just see if that logic is building. Isn't this guys something like
while you're solving it, isn't this something like covariance xy upon variance of x? Great, good Muskan. Isn't this something like that? अगर आप n छोड़ दो, n तो कैंसिल हो जाएगा ना बाहर, अगर मल्टीप्लाई 1/n करते रहोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. बट isn't this something like covariance of xy upon variance of x? covariance of xy का ऐसे ही फॉर्मूला होता है, variance of x का ऐसे ही फॉर्मूला होता है. ऑल ऑफ यू अग्री गाइस? ऑल ऑफ यू अग्री ऑन दिस? ठीक है. अब फॉर्मूला छोड़ो, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट इन प्योर हिंदी या इंग्लिश कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है. फॉर्मूला को मारो गोली. व्हाट इज दिस टेलिंग यू इन इंग्लिश? व्हाट इज दिस टेलिंग यू इन हिंदी कि B2 क्या है? कैन समवन आंसर? एनी गेसेस? कोवेरियंस क्या बताता है गाइस? So relation finding. स्लोप गाइस क्या होता है? B2 होता है स्लोप. ये जो स्लोप है, हम B2 की बात कर रहे हैं ना, स्लोप की बात कर रहे हैं. तो हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि x और y एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, यही तो यहाँ पर कैप्चर्ड है. स्लोप तो यही चीज होती है ना कि x और y क्या होता है स्लोप, कि अगर मैं x एक यूनिट से चेंज करता हूँ तो y कितने यूनिट से चेंज होता है, यही तो B2 स्लोप होता है. ये भी तो यही कह रहा है कि x और y एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. अगर मैं x को चेंज करूं थोड़ा सा, वेरिएंस ऑफ x अपॉन x और y एक साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, वही तो स्लोप होता है. समझ में आएगा इस? हम स्लोप ही तो निकालने, B2 की वैल्यू ही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट आप यही तो निकालने की कोशिश कर रहे हो. अल्टीमेटली आपका x कैसे चेंज हो रहा है, x में वेरिएंस कैसे चेंज आ रहा है, और x के चेंज की वजह से y कैसे चेंज हो रहा है. सो ऑलवेज ट्राई टू डोंट मग अप फॉर्मूलाज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट, द सोल ऑफ इट. और वो सोल यही कह रही है यहाँ पर आपको. वो आपको कह रहा है कि हमारा x और y कैसे चेंज हो रहा है रिलेशन अपॉन, अगर मैं x को चेंज करता हूँ तो x कैसे चेंज होता है, और वो मेरा स्लोप है. एंड इन इकोनोमेट्रिक्स गाइस, एनीथिंग विच इज अ डेविएशन फ्रॉम मीन, उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. वी ऑलवेज राइट एनीथिंग विच इज अ डेविएशन फ्रॉम मीन इन स्मॉल लेटर्स. तो दिस विल बी summation x small xi, this will be yi, and this will be summation xi square. Mark this up. This formula will be used at least 100 times in the entire course. अपने रजिस्टर में पीछे अगेन मार्क करके लिख लो इस B2 की वैल्यू ये वाली, और उसको एक बॉक्स में डाल दो, क्योंकि यू विल बी यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एक B2 की वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करते हो. ठीक है. बेसिकली यू राइट दिस एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. इसको लिखने के मल्टीपल तरीके हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसका तरीका है वो यही है. अच्छा, सो दिस इज वेयर वी आर. लेट्स सी और ओके. ये और फॉर्मूलेज हैं गाइज, और फॉर्मूलाज हैं. अच्छा सॉरी गाइज, मैंने उसमें आर नहीं डाला. सो ये बाकी तरीके हैं इसको लिखने के. जस्ट राइट डाउन ऑल दीज अदर फॉर्म्स. ये हमने फॉर्म देख लिया. ये एक दूसरा फॉर्म है. आर क्या होता है गाइज? आर इज बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो अगर आप इसको यहाँ प्लग इन करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर आप आर डाल दो, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. ठीक है. ऑल वी हैव डन इज कोवेरियंस को रिप्लेस कर दिया है. कोवेरियंस इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. हमने वो पुट किया और उसको शॉर्ट करके ये ले. ठीक है. ये दूसरा है. थर्ड इज आई नीड यू टू प्रूव दीज टू. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बट आई एम आस्किंग यू टू प्रूव इट. It has been asked almost every alternative years to prove this. I want you to do it on your own and see whether this checks out. और ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार. ठीक है. B1 की वैल्यू गाइज, B1 की वैल्यू ये हो गई हमारे पास. ठीक है. और what we can also do is आपके पास ये रिग्रेशन, ये आपके पास रिग्रेशन लाइन है. ठीक है. स्टोकेस्टिक वर्जन के अंदर. और all you do is divide this entire by n. ठीक है. तो तब आपके पास B1 की वैल्यू ये आ सकती है. B1 इज इक्वल टू y बार माइनस B2 x बार.
which basically says that this regression line passes through x bar comma y bar. ठीक है. So या फिर फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन यूज कर लो और उसको n से डिवाइड कर दो तो भी यही आ जाएगा. So if you see this first fundamental equation, इसको n से डिवाइड कर दो गाइस, just divided by n. अगर इसको n से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसको n से करो, इसको n से करो, इसको n से करो, this becomes x bar, this becomes y bar, this becomes b1, this becomes b2 into. ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड बेसिकली वैल्यू. सो यू कैन राइट you can write y bar is equal to b1, which basically tells you that sample regression line passes through. So ये आपका दूसरी इक्वेशन. Now let's move on to our discussion. हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी, ये सब we calculated this and we ultimately reached this point. Just a second guys. Yes guys, sorry. So we are in a position of getting this. हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई, दूसरी b2 की वैल्यू आ गई, and these are the alternate b2 values. ठीक है. Now what this also shows us is that these are the OLS, इनको हम बोलते हैं OLS estimators obtained from OLS. ठीक है. And check that आपका जो E bar होगा वो उसकी वैल्यू 0 होगी. And the other thing that you need to see is that summation EI XI will be equal to 0. Sum of the product of residuals and the explanatory variable is 0. ठीक है. Basically what you are saying is कि they are not correlated. ठीक है. These two terms are not correlated. We will see how they are not correlated. इसको हम prove करेंगे. And the other thing that you need to prove is एक ये proof आ जाता है कई बार, और एक proof आ जाता है summation EI YI hat is equal to 0. ये proof करना कि that your predicted value, ठीक है, and the estimated value and your error terms are not correlated. ठीक है. ये दो चीज़ें आ जाती हैं. Again, if you see the notes, you will find these properties explained here. ठीक है. numerical properties of OLS estimators. ये आपके OLS estimators आ गए, आपकी एक वैल्यू आ गई है, एक दूसरी वैल्यू ये आ गई. just write down this term that these are called OLS estimators. it is the same as just the way like x bar was an estimator of mu. Now we are saying b2 is an estimator of beta 2 and this b1 is an estimator of beta 1. पहले हम x bar से mu को estimate कर रहे थे, तो x bar was an estimator and here b1 and b2 are estimators of beta 1 and beta 2. Now let's talk about the numerical properties of OLS estimators. ठीक है, कि कुछ numerical properties हैं and फिर उसके बाद हम कुछ statistical properties के बारे में भी आएंगे OLS estimator के. ठीक है. but first let's start with the numerical properties. Now पहली बात, they are expressed in terms of observable x and y. ये जो हैं ये क्या हैं, what are these? ये observable है, ये observable है, ये observable है, ये observable है, ये observable x and y के terms के अंदर है. ठीक है. Then the second is these are point estimate. All of you can understand these are point estimate guys, yes or no? Is b1 or b2 a point estimate or not? They are point estimate just the way that x bar was a point estimate of mu, b1 and b2 are point estimate. But हम point estimate ज़्यादा reliable नहीं होते तो हम क्या करते हैं guys? What do we do? Guys, point estimate are not reliable, so what do? We calculate an interval. So हम b1 and b2 का हम बीटा 1 एंड बीटा 2 एक्चुअल बीटा 1 एंड बीटा 2 का इंटरवल निकाल देंगे और बाद में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर देंगे. सो आर यू गेटिंग द फ्लो की किस तरीके से आई लिंक्ड इट थ्रू टू पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेट. सेम तरीका हम यहाँ पर इसके अंदर करेंगे. सो वन b1 and b2 आर कंप्यूटेड फ्रॉम द डेटा. वी हैव द सैम्पल रिग्रेशन लाइन विच विल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. वो सैम्पल रिग्रेशन लाइन डेफिनेटली पास थ्रू करेगी थ्रू your the sample mean and the sample means or even the population means. And the other property is, if you remember guys,
हमारे पास जो सेकंड, जो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी वो क्या थी? फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन वाज दिस, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से आई थी। अगर जब हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू समेशन ई आई स्क्वायर वॉज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू b1, तो ये इक्वेशन आई थी गाइज, इफ यू रिमेंबर। ऑल ऑफ यू रिमेंबर गाइज, अपने नोट्स चेक करो, ये आया था नहीं आया था। उसके अंदर ये चीज क्या है? ये चीज I can write this as yi hat, capital yi hat. So that means yi minus yi hat minus 2 summation yi minus yi hat is equal to 0. That is, I can write summation of ei is equal to 0. और अगर समेशन ऑफ ई आई ही इक्वल टू 0 है तो इसको आप n से भी डिवाइड करके ई बार निकालने की कोशिश करोगे तो भी वो भी तो 0 होगा। दैट मीन्स दैट दी सम ऑफ एरर्स शुड ऑलवेज बी 0। आपकी लाइन बेस्ट फिट लाइन कैसे होगी? जब आप देखोगे कि सारे एरर्स का जब आप सम करने की कोशिश करोगे तो वो 0 होना चाहिए, या उसका मीन भी निकालने की कोशिश करोगे तो भी वो 0 होना चाहिए, तभी तो वो बेस्ट फिट लाइन है। एंड रिमेंबर, दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी ऑफ OLS। दिस हैज नथिंग टू डू विद क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन असम्पशंस। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटली OLS से ही आ रहा है, जो आपका तरीका है पैरामीटर्स निकालने का। ठीक है, पैरामीटर्स एस्टिमेट करने का। बहुत लोग कह देते हैं कि इसका मतलब summation of ei is equal to 0 is a property of your classical linear regression model, but that's not a property. This is a numerical property of the OLS estimators. ठीक है, उसका it has nothing to do with CLRM. Then deviation form के अंदर अगर हम इसको लिखें तो deviation form में let's write it down. हमारा yi is equal to b1 plus b2 plus ei है, xi प्लस ei है। और अगर हम इसको जो हमने दूसरे फॉर्म में लिखा, जो सेकंड इक्वेशन से आया, y बार इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x बार है। ना ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू। ठीक है, 1 माइनस 2 करो, ये हमारा डेविएशन फॉर्म है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन से आया। ठीक है, हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। और हमने सॉल्व कैसे किया? हमने 1 माइनस 2 करा, तो आपके पास आ गया yi माइनस y बार, b1 से कट जाएगा, b2 इंटू xi माइनस x बार प्लस ei। ठीक है, सो ऑल यू विल गेट इज दिस, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको आप ब्रैकेट में डाल के इसको पीछे अपने नोट्स में लिख लो। दिस इज बेसिकली डेविएशन फॉर्म एंड स्टोकास्टिक फॉर्म विद स्टोकास्टिक एलिमेंट। तो डेविएशन फॉर्म में हम जब रिग्रेशन इक्वेशन को लिखते हैं तो डेविएशन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीन बेसिकली। I'll explain this to you later on, ये डेविएशन फॉर्म कैसे है। let's write it down। तो कुछ हमें न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, so what we will do is guys, we'll cover this up in the next class।